Morning. Assalamu alaikum, dear students of Junior 6. How are you all? I hope you all will be fine. This is New Oxford Modern English Book 6, 3rd edition. Dear students, you are requested to open your textbook page 59. Okay, dear students, today we are going to start a new Unit 6, The White Mouse Circus. The White Mouse Circus is an extract from Roald Dahl's novel The Witches. Okay, dear students, before starting reading this extract only, let me give you the summary of full novel, that what happens in the whole novel. This is the novel The Witches, and this is only a piece from that novel, The White Mouse Circus. So before starting the reading, let me tell you about the summary of full novel, that what happens in the whole novel. Okay, here in this chapter, you will not find the full summary, your full story. To find full story, you have to read Roald Dahl's full novel, The Witches. Okay, dear students, the novel The Witches is a story of a boy who lives with his grandmother. His grandmother tells him many stories about witches and and tells him that how to save him from all the witches. Okay, when they go on a holiday to a fancy hotel, you can see in the picture, this is the hotel, and the name of the hotel is Hotel Magnificent. And okay, in the hotel, he brings his two white mice with him to train them to perform different kinds of tricks. But there, the manager of the hotel does not give him permission to keep the mice. But due to his grandmother's arguments with manager, the manager she compels him to give the boy permission to keep the mice with him. So the manager agreed with his grandmother to keep the mice in only in cage. So after a few days he makes a plan to find an empty room where he can give training uh, to the mice. Finally he finds a room and start giving training, and there he dreams of becoming an owner of White Mouse Circus. That was the story which we have in this unit, till that he when he was giving training of different tricks to the mice which he has. He thinks of becoming an owner of the White Mouse Circus, where there is a enormous audience sitting in front of him and he is performing different tricks on mice, and all the people are giving great applause to him. So this is the story which we will read in this unit. But the novel The Witches, what happens in the story The Witches, when you read the full story, you will be able to know that he hears a secret plan of witches when he was giving training to the mice in a private room. There he here's a secret plan of witches to put a potion was a poison used to transform kids into the mice, so in candies and sweets. So they transform one boy first and then him into a mouse, but they still can think as a human, and he makes a plan to steal that poison and give that poison to all the witches. So the plan succeeds, and all the witches then being killed by the first the all the witches transformed into mice, and then all the witches being killed by the hotel staff and the guests. The boy is still alive, and he is still a mouse. So this was the whole story
which the novel The Witches has. So I am giving you the full story, so it will be easy for you to understand the story. Now let's start the reading. The White Mouse Circus, एक सफेद चूहे का सर्कस. This extract is from Roald Dahl's book. ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो आपको ये जो पीस आपको दिया गया है, ये पीस रॉल्ड डैल्स की बुक से लिया गया है, जिस बुक का नाम है द विचेस. द स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय. कहानी एक जवान लड़के की है. एंड हिज इनकाउंटर, और उसका आमना सामना जिसके साथ हुआ विद विचेस, कि कैसे ये जो स्टोरी है विचेस, वो एक जवान लड़के की और उसका जिन चुड़ैलों के साथ, विचेस मीन्स चुड़ैलों के साथ सामना हुआ, ये उसकी एक कहानी है. द बॉय हु लिव्स विद हिज ग्रैंड मदर, एक लड़का जो अपनी दादी या नानी के साथ रहता था, इज ड्यू टू स्पेंड हिज हॉलीडे इन नॉर्वे, जो कि अपनी छुट्टियां नॉर्वे में गुजारना चाहता था. बट बिकॉज हिज ग्रैंड मदर फॉल्स इल, लेकिन जब उसकी माँ बीमार हो गई, दे कांट गो, तो वो नॉर्वे में नहीं जा सके. इंस्टेड, इसकी बजाय, ही इज टेकन टू अ सी साइड होटल इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के एक समंदर के किनारे एक होटल था, वहां पर गए. इफ यू हैव नॉट रेड द बुक ऑलरेडी, अगर आपने ये जो नॉवल पहले से नहीं पढ़ा, बी श्योर टू रीड इट सून, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जल्द पढ़ेंगे. नाउ द बॉय इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड ही इज टेलिंग द full story about his life, that what happened to his life. So the writer is suggesting to read the full novel so that it will be easy for you to understand. Okay, let me tell you the story in Urdu also. ये इस कहानी है एक लड़के की और उसकी दादी की, जो कि एक जगह पे जाते हैं, जो कि बोर्ने माउथ एक जगह है, होटल है, मैग्निफिसेंट उस होटल का नाम है. वहाँ पे स्टे करने के लिए जाते हैं. तो वहाँ पे ये अपने 2 चूहे भी साथ ले जाता है, जहाँ पे जो वहाँ के होटल के मैनेजर हैं वो अलाउ नहीं करते. लेकिन इसकी दादी इतनी बहस करती है उस मैनेजर के साथ कि आपके होटल में इतने चूहे देखे गए हैं, जब आपके होटल में इतने चूहे हैं जो कि सूप में भी जंपिंग लगा रहे हैं, ब्रेड को भी खा रहे हैं, तो फिर मेरा जो पोता है वो 2 चूहे क्यों नहीं रख सकता. तो बहुत आर्गुमेंट्स के बाद जो मैनेजर होता है वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है, आप इसको रख लें, लेकिन ये चूहे जो हैं ये इसमें पिंजरे में ही रहेंगे. इसी दौरान जो है वो कोशिश करता है कि उसको कोई ऐसा रूम मिले जहाँ पे वो अपने इन दोनों चूहों को कोई ट्रिक्स सिखा सके, कि वो पतली रस्सी पर, यू कैन सी इन द पिक्चर, कि वो रस्सी के ऊपर जो है वो यहाँ पे जो पीस ऑफ ब्रेड है या केक है, उसको जो है वो रस्सी के ऊपर चलते हुए इसको खा सके. तो ये ट्रिक्स करना चाहता था. तो यहाँ पे मैं ऐसा रूम मुझे मिले जहाँ पे मैं उसको ट्रिक्स सिखा सकूँ. तो वहीं पे जो था उसको एक रूम नज़र आता है जिस पे ये बोर्ड लिखा हुआ होता है कि ये एक सोसाइटी होती है, वो एक प्राइवेट रूम होता है जहाँ पे ऐसे लोगों की मीटिंग होती है जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन, जो कि बच्चों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं. तो वो वाली मीटिंग्स होती हैं. तो ये वहाँ पे कहते हैं कि हाँ, ये तो अच्छा रूम है, मैं इस रूम में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूँगा, क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ और मुझ पे भी अगर मुझे किसी ने मना किया तो मुझ पे भी जुल्म होगा. सो वहाँ पे ये उस रूम में अपने दोनों माइस को जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है. और इसी दौरान ये सोचने लग जाता है कि मैं काश कि मैं एक बड़ा ऑनर होता सर्कस का, वाइट माउस का, जहाँ पे मैं इन चूहों को जो है वो ट्रिक्स ये चूहे दिखाते और लोग जो है मुझे एडमायर करते और मेरे लिए तालियां बजती. और इसी दौरान ये तो स्टोरी आपकी यहीं तक ही है, लेकिन जब आप इसका फुल नॉवल पढ़ेंगे तो उसे पता चलता है कि उसी दौरान ये विचेस की एक मीटिंग हो रही होती है उसी रूम में, जो ये सुन लेता है, जहाँ पे उन्होंने एक पॉइजन, एक जहर बनाया हुआ होता है कि हम बच्चों पे ये देंगे और उससे जो बच्चे हैं वो चूहों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. तो इसी दौरान वो होटल में एक बच्चा होता है, उसको भी वो चूहा बना देते हैं. और इसके बाद जो है इस बॉय को भी जो है वो चूहे में बदल देते हैं. लेकिन चूहे में तो ये बदल जाते हैं, लेकिन ये इनकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती और इनका
जहन उसी तरह इनका माइंड काम करता है। तो ये जो है वो अपनी एक प्लान बनाता है अपनी ग्रैंड माँ के साथ मिलकर कि हम उस पॉइजन को चोरी कर लेंगे और विचेस को हम खिला देंगे और विचेस सारे जो हैं वो चूहे बन जाएंगे। तो इनका जो प्लान वो सक्सीड हो जाता है और सारे का सारे जो विचेस होती हैं वो चूहों में चेंज हो जाती हैं और फिर जो होटल के जो ऑनर्स हैं और होटल के जो स्टाफ है और गेस्ट हैं वो सारे मिलके उन जो विचेस को जो कि चूहे बन चुकी होती हैं उनको मार देते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी। और फिर एंड में भी ये होता है कि ये जो बच्चा होता है वो हमेशा के लिए चूहा बन जाता है और अपनी ग्रैंड मदर के साथ एज अ चूहा ही, एज अ माउस ही रहता है। सो दैट वाज द फुल इमेजिनेटिव फैंटेसी एक स्टोरी थी। इट वाज नॉट अ रियल स्टोरी, एक फैंटेसी स्टोरी है बच्चों के लिए, ठीक है, फेरी टेल्स जिसे कहते हैं, एक स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग वेयर वी वर। रूम्स वर बुक्ड फॉर अस इन अ प्लेस। कमरे हमारे लिए पहले से ही बुक थे, ठीक है, वो बुक हो चुके थे। called the hotel Magnificent in the famous seaside town of बोर्नेमाउथ। बोर्नेमाउथ एक कस्बा है, उसके समंदर के किनारे एक मशहूर होटल था जिसका नाम था मैग्निफिसेंट, जो कि शानदार होटल था। वहाँ पे हमारे पहले ही से कमरे बुक हो चुके थे। बोर्नेमाउथ, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी जो दादी ने मुझे बताया कि जो बोर्नेमाउथ है वॉज फुल ऑफ ओल्ड पीपल, वो पुराने लोगों से भरा हुआ है। लाइक हर सेल्फ, जैसे कि वो है, जैसे उसकी दादी बूढ़ी है तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों से ये भरा हुआ है। दे रिटायर्ड देयर बाय थाउजेंड्स, वो हजारों की तादाद में, रिटायर्ड मीन्स अपने जिंदगी के आखिरी पल जहां गुजारते हैं। बिकॉज द एयर वॉज सो ब्रेसिंग, क्योंकि जो यहाँ की हवा है वो बहुत, ब्रेसिंग मीन्स फ्रेश है, ताज़ा है, एंड हेल्दी और सेहतमंद है। इट केप्ट देम, वो उन्हें, जो बूढ़े लोगों को यहाँ पर फ्रेश और सेहतमंद रखती है। सो दे बिलीव्ड, सो वो इस बात पर यकीन रखते हैं, अलाइव फॉर फ्यू एक्स्ट्रा ईयर्स, कि वो कुछ मज़ीद साल जो है वो ज़िंदा रहेंगे। अगर इस होटल में आके वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारें तो वो कुछ मज़ीद साल और ज़िंदा रहेंगे। डज इट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या वाकई ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी के उनको ज़्यादा साल मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, यकीनन ऐसा नहीं होता। शी सेड, उन्होंने कहा। इट्स टॉमी रोट, ये एक बचकाना सी, बेवकूफ़ाना सी बात है। बट जस्ट फॉर वंस, लेकिन ज़रूर एक दफ़ा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर, हमें डॉक्टर की इस नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए कि हमें भी यहाँ पे जाके अपने ज़िंदगी के कुछ पल गुजारने चाहिए। सून आफ्टर दैट, इसके बाद, माई ग्रैंड मदर एंड आई, मेरी दादी और मैं, टुक द ट्रेन, हमने ट्रेन ली, टू बोर्नेमाउथ, बोर्नेमाउथ की तरफ हम वहां पर गए, एंड सेटल्ड इनटू द होटल मैग्निफिसेंट, और जो मैग्निफिसेंट जो होटल था उसमें सेटल डाउन हो गए, रहने लग गए। इट वॉज एन एनार्मस वाइट बिल्डिंग, ये एनार्मस मीन्स एक बहुत बड़ी सफ़ेद कलर की बिल्डिंग थी, ऑन द सी फ्रंट, समंदर के सामने, एंड इट लुक्ड लाइक अ प्रिटी बोरिंग प्लेस, और ये बिल्कुल एक बोरिंग मीन्स डल और बोरिंग, बगैर मज़े वाली जगह रखती थी, टू स्पेंड अ समर हॉलीडे इन, कि जिसमें गर्मियों की छुट्टियां गुजारी जाएं। मुझे जो थी वो ये जगह बहुत बोरिंग लग रही थी। आई हैड माई ओन सेपरेट बेडरूम, मेरा अपना एक अलहदा बेडरूम था। बट देयर वॉज अ डोर, लेकिन वहाँ एक कमरा था, कनेक्टिंग माई रूम विद माई ग्रैंड मदर्स रूम, जो कि मेरे रूम को दादी के रूम के साथ कनेक्ट कर रहा था, मिला रहा था, सेंटर में एक दरवाज़ा था। जस्ट बिफोर वी लेफ्ट फॉर बोर्नेमाउथ, जैसे ही हम बोर्नेमाउथ के लिए निकले, माई ग्रैंड मदर हैड गिवन मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे दिया, एज अ कंसोलेशन, एक सुकून के लिए, मेरे मज़े के लिए, मेरी खुशी के लिए, अ प्रेजेंट, एक तोहफा, ऑफ 2 वाइट माइस, एक 2 सफ़ेद चूहों का तोहफा दिया, इन अ लिटिल केज, जो कि एक पिंजरे में थे, एंड आई टुक देम विद मी, और मैंने उन्हें अपने साथ ले लिया। दे वर टेरिफिक फन, ये बहुत ज़बरदस्त मज़े 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 के थे। आई कॉल्ड देम विलियम एंड मैरी, मैंने इनका क्या नाम रखा, मैं इन्हें बुलाता था विलियम और मैरी के नाम से। एक चूहे का नाम था विलियम और दूसरे का नाम था मैरी। एंड इन द होटल, और होटल में, आई सेट आउट राइट अवे टीचिंग देम टू डू ट्रिक्स,
आई सेट आउट राइट अवे, मैंने आई सेट आउट राइट अवे, मैंने फौरन इनको टीच करना शुरू कर दिया, टू डू ट्रिक्स, के वो डिफरेंट जो है वो ट्रिक्स करें। द फर्स्ट ट्रिक आई टॉट देम, पहला ट्रिक जो मैंने उन्हें सिखाया, वॉज टू क्रीप अप, कि वो चढ़ें किस पर, द स्लीव्स ऑफ माई जैकेट, मेरी जैकेट की जो बाजू हैं उसके अंदर से चढ़ें, एंड कम आउट बाय माई नेक, और मेरी नेक से बाहर आ जाए, मीन्स कि यहाँ स्लीव से वो चूहे चढ़े और उसकी स्लीव्स के अंदर से उसकी नेक से बाहर आ जाए यहाँ से। देन आई टॉट देम, फिर मैंने उन्हें सिखाया, टू क्लाइम अप, कि वो चढ़ें, द बैक ऑफ माई नेक, मेरी नेक की साइड से पीछे से चढ़ें, ऑन टू टॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर पर आ जाएं। आई डिड दिस, मैंने ये सब किया, बाय पुटिंग क्रम्स इन माई हेयर, मैंने अपने सर में जो है वो कुछ, जो क्रम्स कहते हैं टुकड़े, छोटे छोटे जो ब्रेड के टुकड़े या रोटी के टुकड़े अपने हेयर में डाल दिए, ताकि वो उसकी स्मेल से जो है वो मेरी पीछे से गर्दन से निकल कर वो मेरे सर पर आ जाएं। ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग, पहली सुबह, द चैम्बर मेड वॉज मेकिंग माई बेड, कि जब चैम्बर मेड कहते हैं जो होटल में सफाई वाली जो औरत होती है, वो जब मेरा बिस्तरा ठीक कर रही थी, व्हेन वन ऑफ माई माइस, तो मेरे दोनों चूहों में से एक चूहा, पोक्ड, झांका, इट्स हेड आउट, अपना सर बाहर निकाल के झांका, फ्रॉम अंडर द शीट्स, जो बेड के ऊपर शीट डली हुई थी उसमें से सर निकालकर वो उस मेड को झांकने लगा। द मेड लेट आउट अ श्रिक, तो जो मेड थी, जो काम वाली थी, लेट आउट अ श्रिक, उसने एक चीख मारी, दैट ब्रॉड अ डजन पीपल, जो कि कई दर्जन लोगों को ले आई, रनिंग टू सी, दौड़ते हुए, टू सी, देखने के लिए, हु वॉज बीइंग मर्डर्ड, कि किसका कत्ल हो चुका है। मीन्स कि जब मेड ने वो शीट को ऊपर उठाया तो चूहा वहां से झांक रहा था, तो इस मेड ने एक चीख मारी, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे जमा हो गए ये देखने के लिए कि किसका कत्ल हो गया है। आई वॉज रिपोर्टेड टू द मैनेजर, मेरी शिकायत लगाई गई मैनेजर को। देयर फॉलोड एन अनप्लेजेंट सीन, तो वहां पर एक नाखुशगवार सीन, मंजर जो है वो वहां पर हो गया। इन द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर्स के ऑफिस में, विद द मैनेजर था, मेरी ग्रैंड मदर थी और मैं मेरी ग्रैंड मदर और मैनेजर जो थे वो मैनेजर के ऑफिस में एक नाखुशगवार सीन या मंजर जो था वो पेश कर रहे थे। द मैनेजर हुज नेम वॉज मिस्टर स्ट्रिंगर, मैनेजर जिसका नाम था मिस्टर स्ट्रिंगर, वॉज ब्रिस्टली मैन इन अ ब्लैक टेल कोट, वो एक लंबे टेल कोट मीन्स जो कि ऐसा कोट जो कि पीछे से लंबा हो, तो टेल कोट में जो था वो एक सख्त आदमी था। आई कैंट परमिट माइस इन माई होटल, मैं इजाजत नहीं दे सकता चूहों को अपने होटल में, मैडम। ही सेड टू माई ग्रैंड मदर, उसने मेरी दादी से कहा, हाउ डेयर यू से दैट व्हेन योर रोटन होटल इज फुल ऑफ रैट्स एनीवे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई से ये कहने की, दैट व्हेन योर रोटन होटल इज फुल ऑफ रैट्स एनीवे, जब तुम्हारा अपना जो होटल सड़ा हुआ होटल है वो चूहों से भरा हुआ है, तो तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये कहने की कि मेरे चूहे यहाँ पे ना हों। माई ग्रैंड मदर क्राइड, मेरी दादी चिल्लाई, रैट्स, चूहे, क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर ने चीख कर कहा, गोइंग मूव इन द फेस, कि जब चेहरे का गुस्से से लाल नीला हो जाना या पर्पल हो जाना, तो देयर आर नो रैट्स इन दिस होटल, इस होटल में कोई चूहे नहीं हैं। आई सा वन दिस वेरी मॉर्निंग, मैंने एक चूहा सुबह सुबह देखा है। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा, इट वॉज रनिंग डाउन द कॉरिडोर, ये कॉरिडोर में नीचे दौड़ रहा था, इन टू द किचन की तरफ, जो होता है कॉरिडोर कहते हैं जो दरमियान में जो जगह होती है कमरों के, उसमें वहां से जो था वो किचन में जा रहा था। दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, क्राइड, चिल्लाई मिस्टर स्ट्रिंगर ने चीख कर कहा कि ये सच नहीं है। यू हैड बेटर गेट दैट रैट कैचर इन एट वंस, यू हैड बेटर गेट द रैट कैचर इट एट वंस, फौरन, आपको फौरन, अब उसकी दादी कह रही है आपको फौरन जो है कैट कैचर, जो चूहे पकड़ने वालों को बुलाना चाहिए। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा, बिफोर आई रिपोर्ट यू, इससे पहले
कि मैं आपकी शिकायत लगा दूं टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़, जो लोगों की जो सेहत की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन पे आपकी शिकायत लगा दूं उनको। आई एक्सपेक्ट, मैं ये उम्मीद करती हूँ, देयर आर रैट्स स्कटलिंग ऑल ओवर द किचन। आई एक्सपेक्ट, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो चूहे हैं वो फुदक रहे हैं। स्कटलिंग मीन्स फुदकना। ऑल ओवर द किचन, वो पूरे किचन में फुदक रहे हैं, किचन के फर्श पर। एंड स्टीलिंग द फूड ऑफ द स्लीव्स, और क्या कर रहे हैं, शेल्फ सॉरी, और शेल्फ से जो है वो खुराक को चुरा रहे हैं। एंड जंपिंग इन, और जंप लगा रहे हैं, इन अंदर और आउट ऑफ द सूप, सूप के अंदर और बाहर जंप लगा रहे हैं। नेवर क्राइड मिस्टर स्ट्रिंगर, मिस्टर स्ट्रिंगर ने चीख के कहा, नेवर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। No wonder my breakfast toast was all nipped round the edges this morning. No wonder, मुझे कोई हैरानगी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरा ब्रेकफास्ट का जो टोस्ट था वो चुबाया हुआ था। निप्ड मीन्स चुबाया हुआ था, राउंड द एजेस, साइडों से, कोनों से वो सारा चबाया हुआ था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। माई ग्रैंड मदर वेंट ऑन relentlessly, मेरी जो दादी थी वो बगैर थके बोलती रही। नो वॉन्डर, कोई शक नहीं है, इट हैड अ नेस्टी रैटी टेस्ट, कि जो इस ब्रेस्ट का जो जो थी टोस्ट था, ब्रेड था, उसका टेस्ट क्या था, नेस्टी, एक गंदा, रैटी टेस्ट, चूहों वाला उसमें से जायका आ रहा था। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप एहतियात नहीं करते, द हेल्थ पीपल विल बी ऑर्डरिंग द इंटायर होटल, तो जो हेल्थ पीपल हैं, जो सेहत का ख्याल रखने वाले लोग हैं, वो पूरे इंटायर होटल मीन्स पूरे होटल को हुक्म दे देंगे टू बी क्लोज्ड, कि इसको बंद कर दिया जाए, इस होटल को, बिफोर एवरी वन गेट्स टाइफाइड फीवर, इससे पहले कि हर एक को टाइफाइड फीवर हो जाए। टाइफाइड फीवर कहते हैं ऐसा बुखार जिसमें आपका सारा जो पॉइजनस फूड खाने से आपका सारा स्टमक जो होता है वो ज़ख्मी हो जाता है। तो उससे पहले कि सब लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाए तो आप जो है अपने होटल को बंद कर दें। यू आर नॉट बीइंग सीरियस मैडम, आप बिल्कुल भी संजीदा नहीं है मैडम, मिस्टर स्ट्रिंगर सेड, मिस्टर स्ट्रिंगर ने कहा। आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, मैं इससे पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतनी संजीदा नहीं हुई थी जितनी कि अभी हूँ। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा। आर यू और आर यू नॉट गोइंग टू अलाउ माई ग्रैंड सन टू कीप हिज वाइट माइस इन हिज रूम? आर यू और आर यू नॉट, क्या आप मेरे पोते को इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपने रूम में सफ़ेद चूहों को रखे या नहीं? तो आप मुझे बता दें। द मैनेजर न्यू, मैनेजर जानता था, व्हेन ही वॉज बीटन, कि अब उसको शिकस्त हो चुकी है, वो हार गया है, वो अब इस ग्रैंड मदर का मुकाबला नहीं कर सकता। मे आई सजेस्ट अ कंप्रोमाइज, मेरा ख्याल है कि हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए मैडम। ही सेड, उसने कहा। आई विल परमिट हिम टू कीप देम इन हिज रूम, मैं इसको इजाज़त दे दूंगा इन चूहों को इसके कमरे में रखने की। परमिट मीन इजाज़त देना। एज लॉन्ग एज, सिर्फ इसी सूरत में, दे आर नेवर अलाउड आउट ऑफ द केज, कि इनको पिंजरे से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। हाउज दैट, ये आइडिया कैसा है? दैट्स विल सूट अस वेरी वेल, ये आइडिया जो है हमें बहुत अच्छा सूट करेगा, ये बेहतर है। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा। एंड शी स्टूड अप, और वो खड़ी हो गई। एंड मार्च्ड आउट ऑफ द रूम विद मी बिहाइंड हर, और मुझे अपने पीछे लिए जो है वो उस कमरे से, जो मैनेजर का कमरा था, उससे बाहर आ गई। So dear students, I think this is enough for today. You are requested to read with translation twice or thrice in a week. And if you have any difficulty, you can send me message in my inbox. Thank you and goodbye. Allah Hafiz.